prompted you to prepare for this UPSC examination? क्या करना है तुम्हें लाइफ में? And I said IAS बनना है. And IAS, IPS, IRS, IFS, these are some of the top services which are on the offer. Briefly about what is GS Paper 2 and how to crack this nuts rather. The first book is Concise CSAT, and for those aspirants who want to deep dive, कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में? इतने वर्षों से किताबें लिख रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस पढ़ रहा हूँ, बना रहा हूँ, आने वाले वर्षों में और पुराने वर्षों के सवालों को देखता हूँ जी। तो कुछ एक सवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें मुझे भी अचंभा होता है कि भाई इसमें जवाब क्या होना चाहिए। कि जो आर्ट बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं जिन्होंने मतलब 11वीं या 12वीं के बाद साइंस सब्जेक्ट से या मैथ्स एज अ विषय से अलग रहे हैं, उनके लिए कठिन हो जाता है जो सवाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के होते हैं। Hello everyone, welcome to yet another episode of Edge Talk. Today we have a very distinguished guest with us, Sri Madhukar Bhagat ji. I think he doesn't need any introduction. Sri Madhukar Bhagat ji is an 1995 batch Indian Revenue Service who is serving as a Joint Secretary, the Ministry of Health and Family Welfare. He has achieved superlative 82% in the personality test in 1995, which is the highest so far. Madhukar ji has also been awarded as Gold Award from the Ministry of Finance as a Best Probationer in 1995 batch, an accomplished author who has written several books for UPSC and beyond, a TEDx speaker, a guide, a mentor, and has done enough articles which has been published in major dailies. I take this opportunity to welcome Madhukar ji. Thank you very much for coming for this podcast. Thanks a lot, Tanveer, and I'm very happy to be here to speak to our young audience, to the ignited minds, and to offer whatever guidance I can. Thank you, sir, for coming. Let me start off with asking you a question about, you are a mechanical engineer. You did your degree in law. You did your master's in economics. You have been guiding several aspirants for UPSC preparations. Where did your journey start from? What prompted you to prepare for this UPSC examination? And also, what kind of misconceptions you had whilst you started off preparing for the UPSC examination? Well, the earliest I remember thinking about joining the civil services when I just joined the college in St. Stephen's and I was pursuing physics honors. And that takes me down the memory lane. And I remember during a casual interaction with a senior, he asked, क्या करना है तुम्हें लाइफ में? And I said, IAS बनना है. And that brings me to the misconception question that you posed before me. At that particular time, IAS, UPSC didn't mean anything. Many a time students think that UPSC and IAS are synonymous. But the fact of the matter is that as I did not understand at that particular point of time, UPSC is the body, the institution which is organizing this examination. It organizes many examinations. And one of those examinations is the civil services. Those who qualify through a grueling and keen competition are able to secure one of the services in a bouquet of almost 20. And IAS, IPS, IRS, IFS, these are some of the top services which are on the offer. You know, another misconception about the UPSC is that, oh, I am an ordinary student of arts background. Oh, I have not qualified for the IIT. Oh, there are students who are going to qualify for the AIMS. How can I compete? It's such a examination which is of geniuses. Right. That's also a misconception. Right. And it's not just an examination of intelligence, but it's a examination which requires a lot of hard work, a lot of perseveration, as well as guidance. Rightly said so, sir. UPSC is a governing body and conducting body for these various examination, and that's one of the misconceptions which come across many aspirants. मैं भी पूछता हूँ क्या कर रहे हो तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ. तैयारी कर रहे हैं. Actually, you are not preparing for the UPSC
examination. You are preparing for certain examination which is conducted by UPSC. Yes. Thanks for clarifying that misconception. Sir, of late I have been seeing that, you and I've been hearing this from many students as well, that UPSC U stands for unpredictable. There has been a huge change in the pattern, the type of questions which have been asked. UPSC has always been thinking two steps, 10 steps ahead of what others can even think of. Have you been observing this, because you have been associated with coaching institutions, you have been mentoring many aspirants through personality tests and all? What is this UPSC? How to bell the UPSC, if I may want to say this? It's a very interesting question, Tanveer. You raised the topic of the unpredictability of this examination. And of course, the last 30, 35 years, I've been associated earlier as an aspirant, later on as a guide for the students. Then, for the last more than 16, 17 years, as an author of McGraw-Hill itself. And over the period of time, McGraw-Hill gave me an opportunity to come up with several books on the different aspects of this examination and even on CUET. But yes, there has been an element of unpredictability, which is there with, for that matter, any examination. If we have to analyze, then 1 million aspirants apply for this examination. Mhm. Out of that, around 550 to 600,000 or 6 lakh aspirants appear for this examination, take the preliminary examination. True. The examination is again divided into 3 parts: the preliminary examination, the main examination, as well as the interview, which is followed by the medical checkup. And finally, the offer letter comes. And therefore, it's a long process. And therefore, the very keen competition which is ingrained in the examination, the very vast syllabus, the process which is an year long and year to year to year, that is definitely adding certain element of unpredictability. And to add to that is the fact that over the years, the pattern of examination has not remained stagnant. Even the nature of questions has changed, has evolved. And therefore, there is an element of huge challenge as far as this examination is concerned. Thank you so much, sir. So that takes me to the leading question, where you talked about preliminary examination, mains, and then interview, and finally the health checkup, and then the offer letter. So very clearly, preliminary examination is the first step towards First this step. journey. First step. And in the preliminary examination, what I understand, and please correct me, sir, that there is a GS paper 1, which is compulsory, where students have to take this and clear this GS paper 1. And then there is a GS paper 2, Yes. which is an sort of qualifying in nature. Yes. Now, I would want to emphasize more on the GS paper 2, which is qualifying in nature, before I get into this GS paper 1. Of late, I have been observing that students are struggling in GS paper 2. What is GS paper 2, by the way? You have authored a book Yes. on GS paper 2. We have published those books. But for the larger audience, I would want you to explain briefly about what is GS paper 2 and how to nut this, crack this nuts rather. So, very nice and interesting question. So, let me show this GS paper 2 book over here. And these are the 2 books for the GS paper 2, which is published by, the first book is Concise CSAT. Right. It's a slimmer book, 350 odd pages, authored by me, which covers every aspect of this. And for those aspirants who want to deep dive, जिनके पास थोड़ा सा और भी समय है, वो इस किताब को ले सकते हैं और इसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं. Now, coming back to your question, that what is the unique aspect of GS paper 2? Around 2015, the GS paper 2, which is also colloquially known as CSAT, Civil Services Aptitude Test, because essentially tests aptitude, was made a qualifying paper. The paper comprises MCQs or multiple choice questions, 80 questions, 2.5 marks each with a 1/3 negative mark. And then at least 1/3 of 200, which is 66.67 marks, has to be scored for a person to qualify. Right. On the surface of it appears to be what's simple. What's there? It's a simple
आसान सा तो होना चाहिए। सवाल भी देखें तो वही कुछ कॉम्प्रिहेंशन के सवाल होते हैं, कुछ बेसिक न्यूमरेसी के सवाल होते हैं और लोगों को लगता है कि भई ये तो बड़ा सिंपल सा है विषय। पर वास्तविकता जो है वो इससे बिल्कुल भिन्न है। अगर मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स कोट करूँ, तो पिछले 3 सालों में करीब 5.5 से 6 लाख विद्यार्थी एस्पिरेंट्स इस परीक्षा के प्रिलिमिनरीज़ में बैठते हैं। लेकिन सिर्फ 40,000, कुछ साल तो 38,000 सिर्फ जीएस पेपर 2 यानी सीसैट के पेपर को क्वालिफाई कर पाते हैं। Hmm. और उस 38,000 या 40,000 में से 30,000 लोगों को मेंस में आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाती है। Right. तो अगर मैं इस प्रकार से देखूं कि जो 5.5-6 लाख एस्पिरेंट्स ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया और बैठे, उसमें से जीएस पेपर 2 ने 5,10,000, 20 लाख, 5,20,000 या उससे ज़्यादा लोगों को इस परीक्षा से हटा दिया और सिर्फ 10,000 लोगों की जीएस पेपर 2 ने आगे जाने से रोका। तो प्रश्न उठता है कि जीएस पेपर 2 की तैयारी अगर छोटी भी है, इवन दो इट अपीयर्स टू बी ओनली अ क्वालिफाइंग पेपर, एक्चुअली इट इज द एलिमिनेटिंग पेपर एज फार एज द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। सर, आई मीन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। मैं ये समझता था कि क्वालिफाइंग इन नेचर है और एस्पिरेंट्स जो इतने सीरियस इस पेपर को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। But if this data says is very true that only 40,000 students out of 5.5 lakh students are qualifying, it means it becomes imperative for the students to give high weightage on this paper. तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? What should be the strategy the aspirant should be applying for? किस तरह के रिसोर्सेज की जरूरत है? क्या टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चों को? See, first of all, they have to get out of this mindset that this paper does not require preparation. I'll go in the examination, I'll crack, and I'll be able to score more than 1/3 marks. हम्म, इस मानसिकता से सबसे पहले उन्हें उभरने की आवश्यकता है। हम्म, Second thing is that they have to make positive effort to make preparation for this paper, although the amount of time which is required is much less. But it doesn't mean that you can simply walk in without any preparation. हम्म, If a student is appearing and devoting, say, 1,000 hours, say for the preliminary examination, जी, say he prepares a minimum of 100 days and 10 hours a day, or 200 days and 5 hours a day, right. then at least 10% to 15% of it, that is 100 hours to 150 hours, has to be budgeted for the GS paper 2, so he can ensure that I have crossed the bar. Hmm. And I have crossed the bar even if the paper is sufficiently tough, and that my hundreds or thousands of hours of investment in time in preparing for the main examination, which many students try to prepare first of all, and also for the preliminary GS paper 1, is not wasted, not lost, because I have not decided to invest that 50, 100, or 150 hours for this paper. So the change in mindset. Second thing is that pick an appropriate resource material, pick a good book. As I mentioned, don't just depend on what is being taught by the coaching institutes or what you think you already know. Take a book. If you do not have that much of time, then this book, which is General Studies, Paper 2, Concise CSAT book, authored by me, this will be very helpful. It's just a 350 odd pages book. And that also covers 5 papers of model test papers and 3 papers of previous year's papers. Besides, the USP is that it has a lot of solved examples. Hmm. It has strategy. It first of all begins with analyzing what are the past year questions, which are the topics, how they are placed. And if I have to give a cue to the viewers over here, then 2 topics emerge as extremely important. Okay. The first is comprehension section, and the second is the basic numeracy section. Hmm. And if we see that the comprehension and the basic numeracy sections themselves combine in the 7 or 8 topics from which the questions arise, Hmm. they themselves score nearly 75% of the questions. Ah. And therefore, any aspirant cannot open the gateway of UPSC Civil Services examination unless he or she has mastered these 2 topics. Very right.
because then otherwise you will not be able to qualify in this qualifying paper. The gateway begins with the preliminary examination Right. and the main examination and the interview, and finally the medical and the offer letter only follow. Right. So first things first, prepare for this examination. Is there any specific topics within the CSAT where you'd like the general aspirants to focus on based on the recent trend? अभी ये आपने जैसे बताया कि बेसिक न्यूमेरेसी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, कॉम्प्रिहेंशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में? देखिए, कॉम्प्रिहेंशन एक बड़ा ही जटिल विषय है। जी। मैं इतने वर्षों से किताबें लिख रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस पढ़ रहा हूँ, बना जी। रहा हूँ जी। और अलग-अलग मटेरियल से पैसेज जमा करता हूँ। जी। फिर भी जब मैं आने वाले वर्षों में और पुराने वर्षों के सवालों को देखता हूँ, जी। तो कुछ एक सवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें मुझे भी अचंभा होता है कि भई इसमें जवाब क्या होना चाहिए? और जबकि मैं एक परीक्षा के वातावरण में नहीं हूँ और वो स्ट्रेस लेवल नहीं है। क्योंकि सवाल इस प्रकार के होते हैं कि इसमें कुछ सवाल कम से कम ऐसे होते हैं जिसमें कि ऑप्शंस के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाना आसान नहीं होता नहीं है। होता। और ये जो है, कोई विद्यार्थी ये सोचे, एस्पिरेंट ये समझे कि मैं तो परीक्षा में जाऊँगा और बिना प्रैक्टिस के मैं वहाँ पर इसे हल कर लूँगा, तो आप टेम्प्टेड होंगे उस सवाल का जवाब देने के लिए और नेगेटिव मार्क इनकर कर लेंगे। और इसके कारण कइयों का जो उस पूरे वर्ष का एफर्ट है, वो बर्बाद चला जाता है। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए जैसे हमने आपको बताया, भले हमारी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 मैकग्रॉ-हिल की है या हमारा कॉन्साइज़ सीसैट है या हमारे इससे रिलेटेड, इन किताबों से रिलेटेड जो मैकग्रॉ-हिल एज सीरीज़ के तहत कोर्स मटेरियल ऑफ़र करता है, जैसे उसी का एक पार्ट हमारा आज का ये डिस्कशन भी है। जी। उसे बड़े ध्यान से देखें, उसे पढ़ें, उसे प्रैक्टिस करें। जो ट्रिक्स बताई गई है इस किताब में कि आप एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, आपको सोचना कैसे है, मेंटल इमेजरी कैसे करनी है। अब सारी बातें तो कुछ एक शब्दों में बताना जी। मुश्किल है, लेकिन मैं हिंट दे सकता हूँ कि ये सारी बातें बताई गई हैं। जी। किस प्रकार के सवालों को हमें छोड़ देना चाहिए, किस प्रकार के सवाल को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर हम डाउट में हैं, तो हम किस प्रकार से उस डाउट से अपने आप को सँभाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सारी बातें बताई गई हैं। और ख़ास करके मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि बेसिक न्यूमरेसी के सवाल कठिन होते हैं, जिसके लिए जी। तैयारी करने की आवश्यकता होती है। वो थोड़े बदलते भी रहते हैं। ये सिर्फ़ नहीं है कि वर्क एंड टाइम के सवाल आ जाएँगे या आपके मेंसुरेशन के सवाल आ जाएँगे, एरिया के सवाल आ जाएँगे या प्रॉफ़िट एंड लॉस के आ जाएँगे। ख़ास करके जो आर्ट बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, जी। जिन्होंने मतलब 11वीं या 12वीं के बाद साइंस सब्जेक्ट से या मैथ्स एज़ अ विषय से अलग रहे हैं, उनके लिए कठिन हो जाता है। जो सवाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के होते हैं या जो सवाल आपके नंबर सिस्टम्स के होते हैं, जो डिविजिबिलिटी पर आते हैं, जी। उनके लिए हमें विषय को जानना है और पढ़ना और इस प्रकार के सवालों को हल करना है। अब मैं आगे बात करूं तो इस किताब में मैंने पूरी तरह से 50 से 60 ऐसे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कम समय में ही विद्यार्थियों को इन कठिन सवालों को हल करने में मदद देते हैं। इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इफ यू work through these 50-60 examples, understand them, the aspirants will be able to tackle the basic numeracy section. And then that is followed by a lot of practice questions, that is followed by the model questions papers, and finally you want to test yourself with the previous year questions papers simulating an environment of examination that you can very well do. And therefore the target of every student should be Mm. that honestly I should be able to score, if I take a model test paper or a previous year's test paper, at least 120 to 130 marks. Yeah. Because if today in a non environment of examination I am able to score 100 to 120 marks, then perhaps 70 plus marks or 75 plus marks in an examination of environment, even if the question is more tough than what is usually coming, I'll be able to score. And if I'm not able to do that, I'm not able to reach that level, then I risk all my hundreds or thousands of hours of effort or even more than that. Yeah. So invest a bit. This paper is an insurance in which you have to invest to remain afloat. Very insightful, sir. Thank you very much Absolutely. for your guidance on this paper too.
Now let's go to this within the prelim sections. There is a paper one, GS paper one, which is Yes. so called for. सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो मैं जिनसे भी बात करता हूँ दे ऑल से दैट जीएस पेपर वन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए वी टेक पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर उससे प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, ऑथेंटिक क्रेडिबल सोर्सेस से भी हम पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स भी हम पढ़ते हैं। बट सर जीएस पेपर वन हम्म, में क्या क्या कवर होता है? जहाँ हम्म, तक मैं समझ पा रहा हूँ कि पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कवर किए जाते हम्म। हैं। आपने शुरू में भी बताया इट्स वास्ट बहुत सिलेबस, बहुत विशाल बहुत विषय है। कहाँ तक बच्चे प्रिपेयर करें जीएस पेपर वन के लिए? और करंट ट्रेंड में क्या करें? हमें ये देखना है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? करंट अफेयर्स रिलेटेड क्या है, क्या हो रहा है? क्या रिसोर्सेस होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितना समय देना चाहिए जीएस पेपर वन को प्रिपेयर करने के लिए? तो देखिए तनवीर, सबसे पहले तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को इस किताब से अवगत कराना चाहूँगा। ये भी व्हाट मैकग्रॉ-हिल के व्हेन लिए हम हाउ? लोगों ने लिखी हुई है। दिस इज़ व्हाट, व्हेन एंड हाउ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और एक राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ता था सेंट स्टीफन कॉलेज में, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। वो जानकारी लेना चाहते हैं, या वो सोच रहे हैं कि भाई मुझे कौन-सा ऑप्शनल पेपर चूज़ करना चाहिए, या मुझे जीएस पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी चाहिए, सीसैट पेपर 2 के लिए क्या इश्यूज़ हैं। यहाँ तक कि मेन एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी कुछ इसमें बताया गया है, और इसमें कई सालों के टॉपर्स ने बताया है, सबसे बड़ी बात है। अरे वेरी गुड। तो उनके खुद के सजेशंस इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। ऐसे जी, कई वर्षों के 10 टॉपर्स के आपके सजेशंस इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। जी, अब बात यह है, जो आपको सवाल आता है कि हमें प्रिलिमिनरी के विषय में या जीएस पेपर विषय के में क्या करना चाहिए। जी, तो पहली चीज़ तो एस्पिरेंट्स को ये जानने की इच्छा होती है कि तैयारी कब से शुरू करें। पहला सवाल ये तो है, सर तैयारी कब से करें? करीब पिछले 30 वर्षों से मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। 95-96 में मैंने क्वालिफ़ाई किया, तो उस समय तो कुछ लोग आते थे फिर अलग माध्यम से। तो सर तैयारी कैसे करनी चाहिए? कब करनी चाहिए? कब शुरू करनी चाहिए? मेरे पास तो 4 महीने का समय है सर, क्या मैं इतनी तैयारी में मैं तैयारी कर सकता हूँ? मैं अगले साल के लिए तैयारी करूँ? मैं अगला अटेम्प्ट करूँ? और इतने तरह के सवाल होते हैं। जी, तो पहला ये है कि देखिए, औसतन लोगों को 6 से 8 महीने का समय प्रिलिमिनरी के पहले चाहिए होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। जी, एक आइडियल होता है कि आपके पास 10 से 12 महीने का समय हो। यानी कि अगर अप्रैल के महीने में प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है, तो आप उसके पिछले वाले वर्ष के मई-जून से तैयारी आप शुरू कर दें। जी, और इसको 2 भाग में विभाजित किया जाता है कि सबसे पहले तो हम कुछ समय मेंस की तैयारी में लगाते हैं, जिसमें हमारा जो है ऑप्शनल पेपर भी होता है और जीएस भी होता है। अच्छा। हाँ, और जीएस वो जीएस जो कि मेन और प्रिलिमिनरी दोनों का ओवरलैप होता है। हुँ, यानी कि हम जीएस की भी तैयारी करें मेन और प्रीलिम्स के, लेकिन उसके बाद 3 से 4 महीने, मैं उसे 100 डेज़ बोलता हूँ, कि 100 डेज़ पहले आप प्रिलिमिनरी के आप पूरी तरह से अपने आप को प्रिलिमिनरी की तैयारी में लगाएँ। लगा अगर आप 7 से 8 घंटे लगा रहे हैं, तो 100 डेज़ पहले यानी कि कम से कम आप 800 हज़ार घंटे लगाएँ। दें। जी, जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी में कुछ बातें आती है, मैंने पूरा इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है कि भई तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर एस्पिरेंट्स इस किताब को देखेंगे तो उन्हें डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन कुछ बातें तो मैं बता सकता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आप एनालाइज़ करें, और एनालिसिस भी हम लोगों ने इस किताब में दिया हुआ है कि भाई हिस्ट्री से कौन से सवाल आते हैं, हिस्ट्री के कौन से भाग से कुछ सवाल आ आते हैं। और आपसे पहले भी चर्चा हो रही थी तनवीर की, एआई के माध्यम से आप कितने मैकग्रॉ हिल एज के माध्यम से आप इसी एनालिसिस को लेके आ रहे हैं। जी, वो बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे एस्पिरेंट्स बड़े लाभान्वित होंगे। जी, उसके बाद आता है कि भाई कौन-कौन सा मटेरियल है होना चाहिए तैयारी के लिए, जी, और आप एज के माध्यम से उन सारे मटेरियल को ला रहे हैं। किताबों के बारे में हमने इस किताब में भी बताया है। जी, उसके बाद उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि भई उन किताबों में सारे सेक्शंस को पढ़ना तो संभव नहीं है। ट्रू। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, तो क्या कई सारे किताब हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स लक्ष्मीकांत की मैकग्रॉ-हिल की किताब प्रेफ़र करते हैं, तो उसमें कौन-सा चैप्टर प्रेफ़र करना चाहिए? जी, कौन से चैप्टर को पढ़ना बड़ा अनिवार्य है? किससे ज़्यादा सेक्शन से सवाल आते हैं? इन सब बातों को ध्यान देना बड़ा ही आवश्यक है। नोट्स बनाना बड़ा ही आवश्यक है। क्योंकि देखिए विषय इतने अधिक होते हैं। इतिहास का विषय है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमी का है, कि भई विद्यार्थी एग्ज़ाम के पहले
कितनी चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँगे। लेकिन जब उनके पास अपना बनाया हुआ नोट्स रहता है, तो वो जल्दी से जल्दी उस विषयों को 5 दिन, 7 दिन में रिवाइज़ कर पाते हैं। नोट्स के अलावा साइड मार्जिन्स, आइडेंटिफिकेशंस, ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं कि अगर मैं बुक में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैंने हाइलाइट किया, साइड मार्जिन नोट्स दिया, अपने नोट्स बनाए, मैं बुक में बनाऊँ, अपने मोबाइल फ़ोन में बनाऊँ, डिजिटल बनाऊँ, वॉइस नोट्स बनाऊँ, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हम्म। रिविज़न के पर्पसेस के लिए। हम्म। क्योंकि क्या है कि ये नेगेटिव मार्किंग होती है जी। और अगर मैं विषय को थोड़ा पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा डेंजरस हो जाता है। मैं उस सवाल को अटेम्प्ट करूँ कि ना पढूँ। क्योंकि मुझे 2 से 3 ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो लगेंगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने विषय को रिवाइज़ किया है, थॉरली पढ़ा है, विषय को समझा है, तो मैं सही सवाल का जवाब दे पाता हूँ कि ये ऑप्शन सही है। जी। अन्यथा अगर मैं गलती करता हूँ, तो मैं नेगेटिव मार्क इनकर करता हूँ और मार्क्स तो जाते ही हैं, ऊपर से नेगेटिव मार्क्स आ जाते नेगेटिव हैं। मार्क्स। इसके अलावा ये भी बात देखने वाली बहुत ज़रूरी है कि मैं करंट अफ़ेयर्स की प्रिलिमिनरी के लिए तैयारी कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। और करंट अफ़ेयर में ये भी देखना है कि विषय का ओवरलैप, जो कॉन्करेंट विषय हैं, उनका जी। ओवरलैप हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ कैसे हो रहा है। जी। मान लीजिए मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करूँ, तो आज विश्व में क्या हो रहा है, कितना हो रहा कितना कुछ हो रहा है, हम है? जी। देख रहे हैं। जी। या फिर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, डाइवोर्स में क्या हुआ या कहाँ पर क्या बातें हो रही हैं, क्या उससे सवाल आ सकते हैं? क्या उससे रिवाइज़ हो रहा है? मैं कल्चर की बात करूँ, तो भारत सरकार ने कोई नई इनिशिएटिव ली है, तो क्या उससे सवाल बन सकता है? जी। तो इस प्रकार के विषयों को आइडेंटिफ़ाई करना, समझना बड़ा ही आवश्यक है। और सारी बातें तो मैं फिर से कह रहा हूँ जी। कि नहीं कवर की जा सकती हैं, लेकिन हाँ, इन प्रकार की किताबों को या एज के कोर्स मटेरियल को स्टूडेंट्स देखेंगे, तो उन्हें थोड़े से ही समय में काफ़ी कुछ जानकारी होगी। यानी जिसे हम कहते हैं गागर में सागर भरना। सागर। सर इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन इस पे एक कोई और कभी और चर्चा करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैं आपने सही कहा। काफ़ी एस्पिरेंट से मैंने बात किया है और यहाँ पे जाके वो स्ट्रगल कर पाते हैं बिल्कुल, क्योंकि इतनी वास्ट सिलेबस में, इतनी बड़े समुद्र में उनको ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे कैसे पिक करना है कौन कौन से टॉपिक जिसकी चांसेस बढ़ जाती है उनकी एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की और क्वालिफाई करने की। that also leads to कि they also need to understand what has been the trend यस। of these questions which have been asked in the CSC examination। उसमें पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर हुँ। का कितना रेलिवेंस है और किस तरह से बच्चों को पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए? देखिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को तो एनालाइज़ करना ही चाहिए। हमने अपनी किताबों में भी जब भी किसी को गाइडेंस देने की कोशिश की है, पास्ट ईयर को एनालाइज़ किया है। मैंने आपको 2 किताबें दिखलाई, कॉन्साइज़ सीसैट में पिछले 10-15 वर्षों का आपको एनालिसिस दिया हुआ है, किस टॉपिक से कौन से सवाल आए और उससे क्या ट्रेंड इमर्ज कर रहा है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। उसी प्रकार से मैंने व्हाट, व्हेन एंड हाउ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू में भी पास्ट ट्रेंड्स को एनालाइज़ किया है। भले वो प्रिलिमिनरी के लिए हो, जीएस पेपर के लिए हो या मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए। लेकिन बात ये भी है कि सिर्फ पास ट्रेंड के बेसिस पे तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी तो बँधा हुआ है नहीं कि भाई जो पहले पूछा है वही आगे पूछी जी। जाएगी बातें। जी। तो इसलिए विद्यार्थियों को ये भी देखना है कि भाई सिलेबस क्या है जी। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। जी। और जैसा मैंने बताया कि कॉन्करेंट विषयों से क्यूज़ लेने हैं। जी। जैसे स्टूडेंट्स, कुछ डायनामिक विषय होते हैं, जैसे इकोनॉमी है, वो इस बात से प्रभावित होती है कि भई अ, आज विश्व में क्या हो रहा है? जी। तो हमें इम्पोर्टेंट विषयों, पास्ट ट्रेंड्स के अलावा कॉन्करेंट विषयों को भी देखना होता है। पॉलिटी है, कोई अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कोई नया लॉ आया है, उसके बारे में जानना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी। तो ये पास्ट ट्रेंड के अलावा करंट ट्रेंड्स को देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एग्रीड सर, एग्रीड। अच्छा सर, एक प्रिलिमिनरी के ही रिलेटेड एक सवाल है कि ऑफ लेट ऑब्जर्वेशन ये रही है दैट यूपीएससी हैज बीन आस्किंग क्वेश्चंस which is less of a factual, more of a contextual, यस। heavily dependent on current affairs। जीएस पेपर वन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस का कंस्ट्रक्ट क्या होता है और उसमें इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस को हुँ, अटेम्प्ट करने के लिए हुँ। स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि किताब तो एक फैक्ट बता देगा, बिल्कुल, लेकिन उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना और बिल्कुल। कंसेप्चुअलाइज करके फिर उसको अटेम्प्ट करना, हाउ वेल दैट स्टूडेंट वुड बी एबल टू डू दिस। आपके नज़र में कोई ऐसा टिप्स है?
बिल्कुल, देखिए पहली बात तो मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि देखिए जो रूपरेखा है परीक्षा के प्रश्नों की वो बदल गई है। जी। अब आज से 30-35 वर्षों के पहले की बात करूँ तो उसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन्स आते थे। ट्रू। अब आज के ज़माने में एआई और गूगल के ज़माने में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, हर जगह। वो नॉलेज अलग है, इन्फॉर्मेशन अलग है। ट्रू। नॉलेज इज़ व्हाट इज़ बीइंग अप्लाइड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। एंड इसलिए जो सिविल सर्वे का दायरा है, वो भी बदल गया है। जी। सिर्फ रूल्स रेगुलेशन जानने से काम नहीं होता, उन्हें किस प्रकार से अप्लाई करना है। ट्रू। और इसीलिए क्वेश्चंस भी आपके कई इस प्रकार के होते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जी। ये नहीं कहा जाएगा, मान लीजिए मैं मेन एग्जामिनेशन की बात करूं कि आप कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में बताइए, बट कुचिपुड़ी नृत्य का इवोल्यूशन मान लीजिए पिछले 100 सालों में कैसे हुआ, ये एक सवाल हो सकता है जी। कि इसकी रूपरेखा कैसे बदली। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी इन्हीं इसी प्रकार से जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कम रहते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा रहते हैं। जी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं हम्म। कि मैं कौन सा ऑप्शन सही है, और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मैं पढूं वो थॉरली पढूं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो कॉन्टेक्स्ट आज का है, जो करंट अफेयर्स है, जो बात जी। आपने भी कही और मैंने पहले कही, मैं उसके अनुरूप भी चीज़ों को देखूं। जी। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और तीसरी बात जो मैंने पहले भी बात कही कि देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे याद रखना भी है। क्या महत्वपूर्ण है उसको शुरू में ही आइडेंटिफ़ाई करना, और जो महत्वपूर्ण है मैंने पढ़ा है, उसको नोट्स के माध्यम से या अदर टेक्निक से उसे याद रखने की आवश्यकता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि हमें मदद करती हैं कि हम किस प्रकार से प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के जीएस पेपर में सही ऑप्शन का चयन कर पाएँगे। वेरी गुड। वेरी गुड। थैंक यू सर फॉर दिस। अब आते हैं बात ट्रांजिशनिंग की। प्रीलिम्स की तैयारी के बाद बच्चों को ये लगता है कि अब मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और जी, ये मैं आज से 10 साल 15 साल बात करूँगा तो शायद ट्रेंड यही हुआ करता था कि बच्चे फोकस करते थे प्रीलिम्स को पहले, कि लेट मी क्लियर द प्रीलिम्स, वंस आई एम एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स आई विल प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। आई थिंक दैट देयर हैज बीन अ चेंज इन द ट्रेंड नाउ। यस, स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड टू प्रिपेयर फ्रॉम द मेंस इटसेल्फ। मुझे लगता है कि एंड आई थिंक यू विल बी द राइट पर्सन टू गाइड अस जी, कि मीन्स का कंस्ट्रक्ट भी कुछ ऐसा ही है कि बदला है। मेजॉरिटीज ऑफ द सेक्शंस हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द प्रीलिम्स। जी। मेन ये जो ट्रांजिशनिंग है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए बच्चों को कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और किस किस चीज़ों पे उनको फोकस करना चाहिए, बिल्कुल, समय कितना बिताना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। और ये एग्जामिनेशन है क्या, जी, मेंस जी। एग्जामिनेशन? तो सबसे पहले तो मेन एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताएँ कि देखिए ये जो 3 एग्ज़ामिनेशंस हैं, सब में अलग-अलग प्रकार की विधाएँ टेस्ट की जाती हैं। प्रिलिमिनरी एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम जी। से होता है। मेन एग्ज़ामिनेशन पूरी तरह रिटन एग्ज़ामिनेशन है जिसमें 9 पेपर हैं, और 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं, जी। 4 पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3, 4 होते हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं जिसमें विद्यार्थियों को एक ऑप्शनल का चयन करना पड़ता है, जो कई ऑप्शनल यूपीएससी ने प्रोवाइड किए हुए हैं उनमें से एक, जी। और एक एसे का पेपर होता है। हर पेपर के 250 मार्क्स होते हैं। 7 पेपर के मार्क्स मिलते हैं हमें, जबकि 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। जी। और ये पूरा एग्ज़ामिनेशन जो है 7 से 8 दिन के भीतर में कंडक्ट हो जाता है। जी। चूँकि ये रिटन एग्ज़ामिनेशन है और इसमें रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और एग्ज़ामिनेशन इतनी वास्ट है कि अगर मैं कहूँ कि इसमें कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, एट्रिब्यूट्स, एबिलिटीज़ आर कॉल्ड फॉर, देन इट विल नॉट बी इनकरेक्ट। हम्म। पहली बात तो है। अब प्रश्न उठता है इसकी तैयारी कब से शुरू करें? जो आपने आपका सवाल था। तो देखिए, नॉर्मली जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जिन्हें क्वालीफाई किया है, वो ये करते हैं कि भई प्रिलिमिनरी अगर अप्रैल में हो रहा है तो मैं उसके पिछले वाले साल के मई-जून से तैयारी शुरू करूँ अगर मेरे जी। पास समय है। जी। शुरू में तैयारी जो है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितना उन्हें समय में मिल पाता है, और बाद में वो अधिक तैयारी करते हैं। जी। और इस शुरू के 5-6 महीने में अगर वो 8-9 महीने का उनके पास समय है, तो वो मेन की तैयारी पे भी ध्यान कर देते हैं और अपने ऑप्शनल पेपर का भी चयन करके उसकी कुछ तैयारी करते हैं। जी। और जब 100 दिन के करीब प्रिलिमिनरी के पास आता है, 90 दिन आता है, इस पे निर्भर करता है कि उनके पास कितना समय है, वो फिर जीए जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 प्रिलिमिनरी के पास आ जाते हैं। जी। अच्छे विद्यार्थी ये भी देखते हैं कि देखो मेरा ध्येय मेन एग्जामिनेशन को
क्वालिफाई करके इंटरव्यू में बैठना है और एक सिविल सेवा में रैंक प्राप्त करना है। इसलिए मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद बैठूंगा नहीं कि भाई मैं परीक्षा का रिजल्ट आने दूं फिर मैं तैयारी करूंगा। तो जिस दिन ही उनकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन खत्म होती है जी वो फिर तैयारी पे शुरू हो जाते हैं। किसी ने 1 दिन का ब्रेक ले लिया, 2 दिन का ले लिया या 3 दिन का ले लिया तो वो अलग बात है। और इस प्रकार से अधिक समय वो मेन की तैयारी को देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रीलिम एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। रैंक तो इस बात पे निर्भर करता है कि मेंस और इंटरव्यू में आपने कितना मार्क्स। नंबर लाया। 1750 नंबर मेन एग्जामिनेशन के और 275 नंबर इंटरव्यू के इंटरव्यू रहते हैं, और 2025 में आपने कितना स्कोर लाया उसके हिसाब से आपका रैंक का डिटर्मिनेशन होता है। फिर इसमें विषय भी अलग आ जाते हैं। जनरल स्टडीज के 4 पेपर हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट साइंसेस और एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का एक पूरा अलग पेपर अलग होता है। पेपर 2 है। ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऐसे का पेपर जिसकी जानकारी मैंने दी वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये तो अपने में ही एक विशाल सागर है। पर जो वॉट मैन एंड हाउ वाली किताब है उसमें हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया है कवर किया कि आप आपने। सब्जेक्ट ऑप्शनल का चयन कैसे कर जी सकते हैं, हाउ डू यू सेलेक्ट द ऑप्शनल, एंड हर ऑप्शनल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस जी चीज़ पर फोकस करना है, जी। ये सारी बातें दी गई हैं। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि मेंस एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, एग्जामिनेशन जिसमें राइटिंग होती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है। यहाँ पर स्ट्रगल जो बच्चे करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई हैव सीन मेनी एस्पिरेंट्स दे स्ट्रगल इन आंसर राइटिंग। यस। क्योंकि आपने जैसे सही कहा कि means is a examination where you need to score better to get better rank, जी और उस बेटर रैंकिंग के लिए आपकी आंसर राइटिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, विच हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द वंस हु हैव रिटन दैट पेपर। और ये एस्पिरेंट्स वो हैं जो काफी सीरियस हैं, जिन्होंने एक स्टेप क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे हैं। सो दे आर मोर और लेस एट पार टू ईच अदर, जी बिल्कुल। सम बेटर यस। सम स्लाइटली लेसर। यहाँ पर आंसर राइटिंग टेक्निक के हिसाब से आपका क्या गाइडेंस होगा कि बच्चों को किस तरह क्या फोकस करना चाहिए, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए, किस तरह से आंसर को लिखना चाहिए, which makes them better than the others? It's a very important issue that you have raised, Tanveer, because that is what is making the real difference. Main examination is about written communication skills. In any paper, there are 20 questions. And in those 20 questions, they have to answer in 250 words. And that means that at an average, people have to write 4,000 to 5,000 words, even if they are very economical. And that has to be done in a period of 3 hours. True. Given the fact that they will take some time to think about the question and prepare, eventually for each question writing 250 words, they get only 7 to 8 minutes. And therefore, the ability to write, think clearly, lucidly, know the subject, recapitulate the points, and write clearly, legibly, and fast all gets combined in that means. Assimilation of knowledge and articulating it in writing. Assimilation of knowledge, articulating, as well as the physical aspect of writing fast and legibly. Therefore, it is extremely important for the students to prepare written notes. Practice more and more. Practice more and more writing. And simulate examination. Take papers on their own, see how much they were able to answer in 3 hours' time. Practice writing for 2 hours, 3 hours every day, so that the muscle memory remains with them of thinking and writing. Very interesting. Very, very interesting. Lot to learn on this thing, sir. Absolutely. आई थिंक कभी हम चर्चा करेंगे कि आंसर जी, राइटिंग के बिल्कुल। लिए ये तो और पूरा क्या-क्या पूरा एक टेक्निक्स सेशन होती ही हैं, है। वो एक सेशन करेंगे कभी बिल्कुल। हम बाद में। अब मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि देयर आर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स among which one subject has to be taken by the students. And again, my observation is students who have done graduation in any of these subjects, most of them
prefer to take one of those one of if those it subjects. if it if it is within the UPSC defined syllabus. जी. But I have also seen Hmm. students where they have gone out of the way and selected some other subject which they have not They've not studied in the studied. undergraduate. Right. ये मिक्स क्या है जी. और इस मिक्स को बच्चे किस तरह से समझें हम्म. और ये इंश्योर करें हम्म. कि हमें सही ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरह से चूज करना चाहिए जो स्कोरिंग हो और जी. इवेंचुअली उनके स्कोर को बढ़ाए बढ़ाए. और रैंकिंग की तरफ लेके तो जाए. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. 500 नंबर ऑप्शनल के होते हैं, जहाँ जीएस पेपर के 1000 नंबर में जो टॉपर्स होते हैं 350 400 नंबर स्कोर पर कर पाते हैं, यानी कि जी 40%. जीएस आप ऑप्शनल के पेपर्स में वो 250 से ज़्यादा 50% से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाते हैं. दूसरी बात है कि ये भी देखा गया है कि कई सारे विद्यार्थी जो अपने टेक्निकल लाइन से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम सही ऑप्शनल का चुनाव करें. कई बार एस्पिरेंट्स जो हैं वो जिसे हम भेड़ चाल कहते हैं, अरे जी सभी ये ले रहे हैं, मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है, मुझे भी लेना चाहिए. हम ले लेते हैं, और जब हमें मौका मिलता है तैयारी की, और जब हम जीएस के बाद ऑप्शनल की तैयारी करने के लिए बैठते हैं, तो हमें समझ में आता है तो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. ट्रू. और कई बार तो ये रियलाइजेशन बहुत लेट होता है, जब हमने प्रिलिमिनरी पार कर लिया और मेंस में बैठ गया और रियलाइज़ किया कि मुझे 500 में से तो मुझे मतलब 150 नंबर आए, 200 नंबर आए, जबकि टॉपर्स को 250 नंबर आ गए थे. तो मेरे लिए जो मेरा वाटरलू था, वो मेरा ऑप्शनल था. जी अब समय को तो हम पीछे मुड़ नहीं सकते हैं, और इसलिए समस्या होती है. और हमारा जो कई साल निकल चुका होता है, 1 साल 2 साल, और अब अगर हम कोई नया विषय लेते हैं, तो उसके लिए फिर हमें तैयारी का विषय चाहिए, समय ट्रू. चाहिए. इसलिए ऑप्शनल का चयन बड़ा ही सोच समझ के करना चाहिए, और इसके लिए मैं 2 बातें बताता हूँ. बताइए. पहला है रीड, एंड दूसरा है अप्लाई. यानी कि आप जो भी 3 ऑप्शनल सोचते हैं, प्रेफ़रेंस फर्स्ट तो वो होना चाहिए कि भई जो पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन में की है, मैं उसमें से ऑप्शनल लूँ, क्योंकि मुझे किताबें में मालूम है, मैंने पढ़ा हुआ है. लेकिन किसी कारण से आपको लगता है कि वो ऑप्शनल मेरे लिए ठीक नहीं है, और आपने निर्णय लिया है कि मैं नया ऑप्शन लूँगा, तो सबसे पहले आप उसके सिलेबस को पढ़ें. नंबर 2, आप उसके बाद जो है उसमें से कुछ किताबें पढ़ें, और देखें कि आपको इंटरेस्ट बनता है कि नहीं. यानी कि फर्स्ट टेस्ट इज़ रीड एंड डिटरमाइन योर इंटरेस्ट. राइट. Second is then apply that knowledge by taking some questions from the area we have studied and see whether you are able to answer or not. And then get it checked by someone, was my answer appropriate? So the two things which is very important is your interest as well as aptitude. थैंक यू फॉर ऑल योर इनसाइट सर. मुझे लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पर भी एक चर्चा करेंगे आपके साथ. ये बिल्कुल. एक विषय है जहाँ पर बच्चों की तरफ से बहुत क्वेरीज आती है और क्लैरिटी नहीं होती है इन सब चीज़ों पे. तो हम एक बार और चर्चा करेंगे आपसे इस बारे में. सर अब हम आते हैं पर्सनालिटी टेस्ट पे जो आपका फोटे है, आपका एक्सपर्टी एरिया है. यू हैव क्वालिफाइड इन योर पर्सनालिटी टेस्ट इन 1995 विद द हाईएस्ट स्कोरर 82%. अभी तक रिकॉर्ड है कि 82% किसी का नहीं आया है. उसके अलावा आपने पर्सनालिटी टेस्ट पे किताब लिखी है इंटरव्यूज के लिए. जी. आप इतने सालों से बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं जी. पर्सनालिटी टेस्ट में. जी. आप कितने इंस्टीट्यूशंस के साथ एसोसिएटेड हैं वेयर यू हैव बीन वन ऑफ द मेंटर फॉर कोचिंग एंड गाइडिंग दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. पर्सनालिटी टेस्ट है क्या? आखिर यूपीएससी उसमें जज क्या करती है बच्चों को? तो बड़ा अच्छा सवाल है. और in the past 30 years, whenever on a non-commercial basis or on platforms of NGOs, or where the students have approached me directly to talk, or the institutions have requested, this is one area that I talk about what is exactly personality test and what is required. तो देखिए, थोड़ी सी अपनी बात कर दूं कि भाई मैं रेलवेज़ में कार्यरत था. यूपीएससी की एक परीक्षा एससीआरए होती थी, जिसमें जी यूपीएससी 1 लाख में से कोई 20-22 बच्चों को सेलेक्ट करती थी. उसमें से मैं सेलेक्ट हुआ था, और मुझे ग्रुप ए जॉब रेलवेज़ में मिला था. और चूँकि मैं ऑलरेडी रेलवेज़ में था, प्रोबेशन में था, और मैं तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज की भी, मैं जानता था कि देखिए रिटन में परीक्षा की तैयारी करने के लिए तो मेरे पास अधिक समय नहीं है, क्योंकि कई बार ट्रेन में कई रातें गुजारनी पड़ती थी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना पड़ता था. पर मैं इस बात से पूरी तरह सहमत था कि देखिए मैं यूपीएससी में
SCRA एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा इंटरव्यू मार्क्स लेके आया हूँ और मेरे में वो प्रतिभा है। और मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ तो क्या हुआ, हम्म। मेरे पास इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए समय है और मैंने बहुत तैयारी की। हम्म। तो सबसे पहली बात ये है कि इंटरव्यू ऐसा विषय नहीं है जिसकी तैयारी नहीं होती है। जी। और इसी के लिए मैंने ये किताब सिविल सिविल सर्वेंट। सिविल इंटरव्यू निकाली, जिस अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, इसका हिंदी में भी इंग्लिश में उपलब्ध भी है। है। सिविल सर्विसेज इंटरव्यू हाउ टू एक्सेल, और ये मेरी पहली पब्लिक डोमेन में पहली किताब थी। तो आप कह सकते हैं कि मेरे लिए बड़ा ही एक फेवरेट बुक्स में से है। क्लोज टू योर हार्ट। क्लोज टू माय हार्ट, एब्सोल्युटली। और अब मैं हमेशा कहता हूं कि व्हाट डू दे, इन माय टॉक्स आई टॉक अबाउट व्हाट डू दे आस्क इन सिविल सर्विसेज इंटरव्यू, जी। एंड आई से ASK is an acronym. A Yes. stands for your abilities, S stands for your skills, and K stands for your knowledge. Mm. These are the guiding parameters. But beyond that, what is being judged in your personality is your thoughts, how you think. And let me quote an incident. After having written this book somewhere in 2009, I met a retired chairman of UPSC, जी। and I just wanted to check that whether I'm going on a right lines, and I presented my write up to him, and I said that, "Sir, this is the book." And he said, then I asked him that, "Sir, you have been a member of the UPSC for 5 years. You retired from civil services as a very senior IAS officer, and then been a chairman for a couple of years, and you would have sought an innumerable boards. What what do you think is the most important thing that UPSC and the members want to see in an interview in a candidate?" Okay. He thought for a while and he said, "We want to see how a candidate thinks." Things. And in my innumerable talks that I have given, this is the starting point of guidance about civil services. In my articles which have appeared in Times of India on preparing for the civil services interview, a whole series which came in Hindu, जी। they can Google up, and also in Hindustan Times, जी। there has been emphasis on thinking, developing your thought, originality of thought, correctness of thought, and above all, honesty of thought. Honesty of thought. ये important It's element है। extremely important, बहुत ही महत्वपूर्ण है। How आप do you deal the situation at that point in time? that, What is your good Hmm. thinking ability? Interesting discussion, sir. जी, sir. Interesting thought. Uh, really privileged to have you here. What would you like to actually convey to these aspirants who are going to take this examination coming soon? I think now is their interview session Yes. season going on, Yes. and best of luck to all of them who are going for this interview. All the best to them. बट अब जो बाकी जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए आपके आपकी तरफ से क्या गाइडेंस होगा, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? Just one thing, work hard and believe in yourself. Thank you so much, Thank you so sir. much. Thank you for your time and for this insightful discussions. We are privileged to have you Thank here. you so much. Thank you very much.